आज की क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम्स पढ़ने वाले हैं जो दैट इज किंगडम बेस्ड क्लासिफिकेशंस, यानी कि कितने किंगडम कब कब किन किन साइंटिस्ट ने दिए और उन किंगडम्स के अंदर जो कैटेगरीज आते हैं वो कैटेगरीज कौन कौन से होते हैं और कौन से ऑर्गेनिजम्स को किस कैटेगरी के अंदर रखा गया और क्यों रखा गया. दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी. So in our previous class we had studied about the first classification system was done by Aristotle, and he classified living organisms into two basic categories, and that was plants and animals. And thereafter he classified animals on the basis of red blood or without red blood, and he also classified plants on the basis of their size, that is the smallest ones were called as herbs, and then the larger ones were called as shrubs, and then came the largest, that was the trees. So the first scientific classification was done by Aristotle, but there were no formalization of that classification system. So the first scientist who actually formalized the classification system was Linnaeus in 1758. He was the first scientist who officially formalized this two kingdom classification system, that is animals and plantae, and when he did it in 1758. But this system was in regular practice among the biologists since the days of Aristotle. So it is a very old classification system, but it was legally formalized or officially formalized by Linnaeus in 1758. And thereafter he classified the living things into two kingdoms, just like Aristotle. The first was Animalia and the second one was Plantae. So we now know that there are different classification systems like 5 kingdom or 8 kingdom or 7 kingdom. So we don't have to study the 8 kingdom and 7 kingdom or 6 kingdom in detail, but we do have to study 5 kingdom classification system of R.H. Whitaker in detail. We have to study that classification system in detail. So in that classification system we are going to study that these protozoans will not be considered animals. These will be considered in the case of Protista according to the present classification system that we have to study of R.H. Whitaker. But in the case of Linnaeus classification system, this protozoan and animals are placed together in the kingdom Animalia. And in plant we had all the remaining living organisms, that is the bacteria, that is the fungi, that is the alga or the bryophytes or the ferns. So this ferns that we are seeing here, we now know that this belongs to another category which is called as Pteridophyta, but that is according to the classification system of R.H. Whitaker. That is why I have not written here Pteridophyta, because at that time Pteridophyta was not classified in the way that we now know. So here I have written ferns, but you must understand that this fern would belong to the category of Pteridophyta. So the present 5 categories of plants are alga, bryophyta, Pteridophyta, gymnosperm and angiosperm. So if we look over here, these 5 are the categories of plants of the present classification system. But in the Linnaeus classification system, these 5 were in the case of plants. That is okay, that is correct. But there are certain other organisms also which are here, but they should not be here. So which are they? These are the bacteria, these are the lichens, and these are also the fungi. So these categories do not actually belong here according to the present classification system, but it was according to Linnaeus. So there were many criteria depending upon which Linnaeus classified these organisms. So first of all we are going to study a few criteria, and we are going to study about how he classified. So he first saw what were the mode of nutrition. So mode of nutrition in these is heterotrophic, and in many of these is autotrophic. Apart from that, he also saw many vegetative characters, whether they were unicellular or say multicellular, and there are certain also other categories which he included to classify these organisms. So going by the body size or the body pattern, we know that plants have a random shape. They don't have a very much fixed shape like just like animals, because in the case of animals we know that we have a certain fixed body pattern and body size. But if you see two plants of the same species, they will not have the similar properties just like two humans or two lions or two cats or two dogs.
सो दो जानवर में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी होती है, लेकिन अब दो प्लांट्स के शेप और साइज को देख लो तो काफी ज्यादा वेरिएशन होता है। तो इन द केस ऑफ प्लांट्स ही ऑब्जर्व दैट these showed great variation in shape and size, but in the case of animals, which we have seen here that protozoans and animals are being included in the Animalia kingdom, so animals के अंदर बहुत ज़्यादा शेप और साइज को लेके वेरिएशन नहीं होता है। अगर आप लोकोमोशन की बात करें, so if we take the locomotion as criteria, then these animals can show locomotion. These animals can move from one place to another, but plants cannot show locomotion. So this was also a criteria. Likewise, there were many other criteria. So a few criteria we have now discussed, that is movement or locomotion, you can say that, or the mode of nutrition, or the shape or size of the body. So these were a few criteria on the basis of which Linnaeus classified these organisms as plants and these organisms as animals, or in the kingdom Animalia. So this was his classification system. Now from two kingdom classification system, we have to study three kingdom classification system. So three kingdom classification system was given by Ernst Haeckel. So here a new category or a new kingdom was formed, and that new kingdom was called as Protista. So this is the new kingdom in the case of three kingdom. So these two kingdom were already there, that is here also we are seeing Animalia and Plantae. Here also we are seeing Plantae and Animalia. So new kingdom or the new category that we have formed is the Protista. So it was given by Ernst Haeckel, and what is that difference is that we have to see here. यहाँ पर alga, fungi और protozoa को लाया गया है, and from here you can see protozoa को animal की कैटेगरी से लाया गया है, और alga, fungi और बैक्टीरिया इनको लाया गया है प्लांट के कैटेगरी से। So this is the new kingdom which includes these organisms. Now if we see what is the common character in these four, so we see that there is no differentiation of tissues over here. यानी कि एल्गा में भी बहुत ज़्यादा टिश्यूज का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, फंजाई में भी नहीं, प्रोटोजोआ तो सिंगल सेल का होता है और बैक्टीरिया भी जनरली सिंगल सेल का होता है, बट बैक्टीरिया कॉलोनी में भी रह सकता है। सो इन चारों ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इसी की वजह से इन्होंने प्रोटिस्टा में इन चारों कैटेगरी के इन चारों ऑर्गेनिजम्स को रखा एक कैटेगरी के अंदर। सो दिस वाज द न्यू किंगडम and this is what the organisms which are contained in it, and this was the reason, यानी कि यहाँ पर क्या है, do not show differentiation of tissues। तो ये बात इन्होंने किसके लिए कहा, ये बात इन्होंने प्रोटिस्टा के लिए कहा कि सिंस प्रोटिस्टा में ये चारों जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें तो टिश्यूज का डिफरेंशिएशन ही नहीं होता है। लेकिन अगर हम प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में बहुत टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं, सिंपल टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ऐसे बहुत सारे टिश्यूज प्लांट में पाए जाते हैं। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में भी बहुत तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो प्लांट्स और एनिमल्स में तो अलग अलग तरह के टिश्यूज पाए जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर टिश्यू का डिफरेंशिएशन है इन द केस ऑफ प्लांट एंड एनिमेलिया, लेकिन इन चारों में टिश्यू का डिफरेंशिएशन नहीं था। इसी कारण से अर्न्स्ट हैकेल ने इन चारों को एक नया कैटेगरी बनाया जिसका नाम इन्होंने प्रोटिस्टा रखा। सो दिस वाज हिज क्लासिफिकेशन सिस्टम। नाउ वी कम टू द फोर किंगडम क्लासिफिकेशन बाय Copeland. So he gave it in 1956. So we don't have to remember the date because that won't be asked. But generally it was his classification system और इन्होंने एक नया कैटेगरी बनाया just like Ernst Haeckel। तो Ernst Haeckel ने कुछ फीचर को लिया, उस फीचर को मैच किया कि किससे ये सिमिलर है और फिर एक नया कैटेगरी बना दिया। Likewise Copeland ने भी यही काम किया। तो Copeland took certain similar characters like undifferentiation of the nucleus or nuclear structure। तो वहाँ पे उस कैटेगरी के बेसिस पे इन्होंने एक नया किंगडम बनाया जिसे हम आज तो मोनेरा के नाम से जानते हैं, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, बट उन्होंने उसे एक दूसरा नाम दिया था जिसे कहते हैं माइकोटा। तो जब कोपलैंड ने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था तो उन्होंने माइकोटा नाम दिया था, लेकिन इसी कैटेगरी को आज हम मोनेरा के नाम से पढ़ते हैं।
सो मोनेरा और द माइकोटा इट इज रफली द सेम। तो इस कैटेगरी को इन्होंने नया क्यों बनाया और इसमें किसे रखा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि इस कैटेगरी में इन्होंने किसको रखा। सो ही प्लेस्ड प्रोकैरियोट्स। तो इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम के बेसिस पर इन्होंने प्रोकैरियोट्स में 3 कैटेगरीज को रखा, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीट्स। So these are the 3 categories that he placed under Monera और Mycota according to him। तो इन्होंने देखा कि इन तीनों जो ऑर्गेनिजम्स थे, यानी कि इन तीनों कैटेगरीज के जो भी ऑर्गेनिज्म थे, उनके अंदर न्यूक्लियस में एक बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जा रहा था, यानी कि इनका न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बाकी के न्यूक्लियर स्ट्रक्चर से डिफरेंट था। तो इन सभी में प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया, इन सभी के न्यूक्लियस में कुछ इस तरह का मेम्ब्रेन होता है। तो अगर हम इन चारों की बात करें, प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमेलिया, तो इनका जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर में इस तरीके से डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जिट इज बाइलेयर्ड और 2 लेयर्ड। सो ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियस का, वो मोनेरा में यानी कि प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है। यहाँ पे और भी डिफरेंसेस हैं, जैसे कि क्रोमोसोम, बट यू आर गोना स्टडी क्रोमोसोम इन योर जेनेटिक्स चैप्टर इन योर 12th क्लास, एंड ऑल्सो अ बिट अबाउट क्रोमोसोम यू आर गोना स्टडी इन योर सेल चैप्टर व्हेन वी विल स्टडी अबाउट न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि लीनियर टाइप के होते हैं। तो यहां पर क्रोमोसोम्स में सर्कुलर नेचर नहीं है, लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इनके पास ऐसा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। दिस रेडिश न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट आई हैव ड्रॉन हियर, इट वोंट बी प्रेजेंट इन आइदर ऑफ दीज 3 केसेस। सो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम पाया जाता है, वो भी सिर्फ डबल लेयर्ड, या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कह सकते हैं इसका, और यहां पर एक सिंगल सा क्रोमोसोम होता है। इसकी तरह बहुत सारे छोटे छोटे क्रोमोसोम नहीं होगा। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ दीज 3 कैटेगरीज एंड द प्रोकैरियोट। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, एक अच्छा सा न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सो दैट न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन दीज 3 केसेस। तो इसके बेसिस पर इन्होंने एक नया किंगडम निकाला, एंड दैट किंगडम इज व्हाट इज नोन एज मोनेरा टुडे, बट ही कॉल्ड इट एज माइकोटा। तो इन्होंने क्या किया कि इसे क्यों अलग किया? सेपरेटेड ड्यू टू डिफरेंट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। क्योंकि अभी हमने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर डिस्कस किया, वहां पर क्या था, वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जा रहा है मोनेरा के अंदर, तो इसका न्यूक्लियर स्ट्रक्चर अलग होता है। इन तीनों का न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, इसीलिए इन तीनों को अलग रखा गया और एक नया कैटेगरी बनाया गया, मोनेरा। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रोटिस्टा के बारे में भी जानना है कि प्रोटिस्टा में इन्होंने क्या किया। प्रोटिस्टा में इन्होंने ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स रखा, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो कि सिंगल सेल के होते हैं, तो उनमें अगर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, जो अभी हमने बनाया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर वो भी है और ऑर्गेनिज्म एक सेल का है, that is the whole organism is consisted of only single cell, that is the organism comes under unicellular species or unicellular organisms, those eukaryotic and as well as unicellular organisms will be placed under the protista। तो यहाँ पर अच्छा न्यूक्लियस यानी कि एक प्रॉपर न्यूक्लियस भी होगा एंड ऑल्सो इट विल बी नॉर्मली सिंगल सेल्ड, तो उसके लिए प्रोटिस्टा बनाया गया। तो यहाँ पर प्लांटे में एक और एक्स्ट्रा कैटेगरी रह गया एंड दैट वाज फंजाई। अब हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे कि फंजाई में भी सेल वॉल होते हैं, प्लांट्स में भी सेल वॉल होते हैं, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रोफिक होते हैं। जनरली देयर आर एक्सेप्शनल प्लांट्स जो कि पैरासिटिक होते हैं या इंसेक्टिवोरस होते हैं, दोज आर एक्सेप्शंस।
बट नॉर्मली प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स, यानी कि ये खुद का खाना बना सकते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। एंड फंजाई आर हेट्रोट्रोफिक, ये खुद का खाना नहीं बना सकते हैं। फंजाई आर जनरली डीकंपोजर्स, तो ये डिकेइंग डेड या डिकेइंग चीज को खाते हैं या फिर ये किसी और ऑर्गेनिज्म पे रह के उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। यानी कि जो फंजाई हैं वो डीकंपोजर हो सकते हैं या फिर पैरासाइट्स हो सकते हैं, तो ये होते हैं फंजाई। बट दीज आर हेट्रोट्रोफिक, ये अपना खाना नहीं बना सकते हैं। तो प्लांट्स और यानी कि ऑटोट्रोफ और फंजाई यानी कि हेट्रोट्रोफ, तो इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये बहुत बड़ा मिस्टेक था कि एक ऑटोट्रोफिक को इन्होंने हेट्रोट्रोफिक के साथ रख दिया। यानी कि प्लांट्स खुद से खाना बना सकता है, फंजाई खुद से खाना नहीं बना सकता है। इट कैनॉट डू फोटोसिंथेसिस, इट कैन डू फोटोसिंथेसिस। तो ये इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी थी, क्योंकि इन दोनों को साथ में नहीं रखा जा सकता, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। So now we have seen 2 kingdom classification system, 3 kingdom and 4 kingdom. The most important thing to remember among these is who gave or which scientist gave which classification system, that is Linnaeus, then came Ernst Haeckel and then came Copeland. So what are their classification categories? Animalia Plantae, Protista Plantae Animalia, Monera Protista Plantae and Animalia. You have to remember which scientist gave which classification system and what are the categories or what are the kingdoms which came under their classification system. 3 kingdom में यहाँ कौन आ रहे हैं, 4 kingdom में यहाँ कौन है, 2 kingdom में वहाँ कौन है। And also you must remember कि किस category में कौन सा organism आ रहा है। So this is how we have to remember these important points in this topic. So now we will study about 5 kingdom and 6 kingdom classification system. Now we'll study about the 5, 6 and 7 kingdom based classification system. So first of all, this is the classification system that we have to study in full detail. यानी कि NCERT के अकॉर्डिंग हमें ये वाला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो पूरे डिटेल में पढ़ना है। सो इसे हम सेपरेटली पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू सी 5, 6 एंड 7 किंगडम बेस्ड क्लासिफिकेशन। सो ये सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम से पहले अगर हम 5 किंगडम की बात करें तो पिछले क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने देखा था कि फंजाई जो था वो प्लांटे में आया था, लेकिन यहाँ पर फंजाई को सेपरेट किया गया। यानी कि फंजाई क्या है, हेट्रोट्रोफिक, प्लांटे क्या है, ऑटोट्रोफिक। और फंजाई क्या होता है, नॉन मोटाइल, खुद से ट्रैवल नहीं कर सकता। एनिमेलिया खुद से ट्रैवल कर सकता है। तो एनिमेलिया और फंजाई दोनों ही हेट्रोट्रोफिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन एनिमेलिया के ऑर्गेनिजम्स मूव कर सकते हैं, फंजाई के ऑर्गेनिजम्स मूव नहीं कर सकते हैं। और प्लांट से क्या सिमिलरिटी है, क्योंकि प्लांट और फंजाई दोनों में सेल वॉल होता है, लेकिन प्लांट्स के पास फूड बनाने का कैपेसिटी होता है, दैट इज फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फंजाई कैन नॉट डू दैट। तो फंजाई को सेपरेट किया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। अब उसके बाद हमें देखना है 6 किंगडम, और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर उसमें ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इट वाज गिवन बाय कार्ल बोस, और इन्होंने बैक्टीरिया के जो 2 पार्ट होते हैं, दैट इज यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, दोनों को सेपरेट करके 2 सेपरेट किंगडम ही बना दिया। तो यही इनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन था। उसका रीजन ये था कि ये आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का सेल वॉल का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। इसके अलावा दोनों में और भी मल्टीपल डिफरेंसेस होते हैं जो कि जेनेटिक्स के होते हैं, दैट इज डीएनए आरएनए के अदर डिफरेंसेस होते हैं। तो वहां पर उसके बेसिस पर इन्होंने यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को सेपरेट कर दिया। अब इन्होंने 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम भी दिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने ये जो 5 या 6 किंगडम थे, ऊपर में 5 और नीचे में 6, इनको 3 डोमेन में बांटा। जैसे कि आर्किया के अंदर इन्होंने आर्की बैक्टीरिया रखा, यू बैक्टीरिया को रखा बैक्टीरिया के अंदर, और ये चारों तो हमें पहले से ही पता है, दैट इज प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, वो तो हमने ऊपर में ही देखा था। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो मोनेरा था, मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया और जो आर्की बैक्टीरिया होता है उसे इन्होंने सेपरेट करके 2 अलग अलग किंगडम बना दिया। तो इन्होंने जो 2 अलग अलग किंगडम बनाया, उसके लिए 2 अलग अलग डोमेन्स भी बनाए। यानी कि 2 डोमेन्स, आर्किया में इन्होंने आर्की बैक्टीरिया को रखा, बैक्टीरिया के अंदर में इन्होंने यू बैक्टीरिया को रखा, और फिर यूकैरिया में वो जो चारों, यानी कि वो चारों में प्रॉपर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है, जिसे हमने पढ़ा था पहले ही, कि जिसे हम यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स या मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स कह सकते हैं, जिनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके पास अच्छा मेम्ब्रेन होता है। सो यूकैरिया में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं।
अब उसके बाद पढ़ना है 7 किंगडम। तो 7 किंगडम के बारे में हमें बस ज़्यादा नहीं जानना है। यहाँ पर सारे के सारे किंगडम सेम है, लेकिन एक नया किंगडम आया है, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमिस्टा। तो क्रोमिस्टा इसलिए बनाया गया क्योंकि सर्टेन ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें कि कुछ एबनॉर्मल सिमिलैरिटी था, जैसे कि फोटोसिंथेसिस बनाने वाला अपैरेटस, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे इन्होंने देखा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटी थी, जो कि कुछ ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते थे फंजाई को, कुछ बिलोंग करते थे प्रोटिस्टा को, और कुछ प्लांट्स को बिलोंग करते थे। तो इन तीनों में इन्होंने कुछ कुछ फीचर ऑब्जर्व किया जो कि सिमिलर था। उसके बेसिस पे इन्होंने एक नया किंगडम बना दिया जिसका नाम रखा क्रोमिस्टा। तो क्रोमिस्टा में इन्होंने कुछ एल्गा को रखा, फिर फंजाई का एक मेंबर होता है ओओमाइसीटिस, उसे रखा। उसके अलावा उन्होंने और भी ओओमाइसीटिस और ये जो प्रोटोजोन्स है, प्रोटोजोन्स को हमने देखा था कि वो आते हैं इस प्रोटिस्टा में, लेकिन इन्होंने प्रोटिस्टा से प्रोटोजोन्स को निकाला, फंजाई से ओओमाइसीटिस को निकाला, डाई एटम्स को निकाला इन्होंने प्रोटिस्टा से, और कुछ एल्गा को नहीं निकाला इन्होंने प्लांटे से। तो अलग अलग किंगडम से कुछ ऑर्गेनिजम्स को निकालकर इन्होंने एक किंगडम में रखा, दैट इज क्रोमिस्टा। सो वी डोंट हैव टू स्टडी दिस इन डिटेल, इट वाज गिवन बाय थॉमस कैवेलियर स्मिथ। तो ही वॉज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, लेकिन हमें उतना नहीं जानना इनके बारे में, बस इतना पता करना है, याद रखना है कि 7 किंगडम में एक एक्स्ट्रा आया है जो कि ऊपर से डिफरेंट था, दैट इज क्रोमिस्टा। बाकी 6 के 6 किंगडम सेम एज अबव है, तो इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। और इनमें एल्गा प्लांट से आया, डाई एटम प्रोटिस्टा से आया, ओओमाइसीटिस फंजाई से आया, प्रोटोजोन्स प्रोटिस्टा से आया। तो इन्होंने बस यही किया कि इन ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरी से लेकर के एक नया कैटेगरी बना दिया क्रोमिस्टा। इससे ज्यादा इस 7 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में हमें नहीं जानना है। तो इसके अलावा भी 8 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम होते हैं, लेकिन उन सबों को हमें नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है। इनफैक्ट ये भी नहीं उतना ज़्यादा पढ़ना है, बट हमने इसे ब्रीफली देख लिया कि इसमें आखिर डिफरेंस क्या है। तो एक छोटा सा पॉइंट तो डिफरेंस है, बस क्रोमिस्टा का ही डिफरेंस है ऊपर से, और तो कोई डिफरेंस यहाँ पर है ही नहीं। सो दिस इज द डिफरेंस। अब यहाँ पर 6 किंगडम इंपॉर्टेंट है, और खासकर ये जो 3 डोमेन सिस्टम है, ये 3 डोमेन सिस्टम का हिंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बट डिटेल में नहीं बताया है उसने। तो ये 3 डोमेन सिस्टम हमें इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, जो कि एनसीईआरटी ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिटेल में दिया है। तो इसे अब हम अलग से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इट वाज गिवन बाय आरएच विटेकर। सो इसी किंगडम के बारे में हमने अलग से डिटेल में पढ़ने हैं। तो इसमें और इसमें एक डिफरेंस याद रखना है, मोनेरा के अंदर आते हैं आर्किया और बैक्टीरिया, लेकिन यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया अलग अलग किंगडम बना दिए गए। So this was the difference between 5 kingdom and 6 kingdom। और हमें साइंटिस्ट के नाम जरूर याद रखने हैं, आरएच विटेकर, कार्ल वोज, एंड देन वी हैव थॉमस कैवेलियर स्मिथ। तो ये तीनों साइंटिस्ट के नाम हमें याद रखने हैं कि इन्होंने कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम या कितने किंगडम वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर classification systems. So now we will be studying this classification system of R.H. Whittaker in detail.